and let me present my screen. All right. My screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay. So basically, in this lesson, we will be in this lesson and in the second term, we will be studying some topics which I will share with you. Just a second, let me identify where my basically. Okay. So, according to our term wise breakup, we will be studying. This is the old scheme of work. Anyways, anyhow, the first topic which we will be studying is mixtures, and then we will be studying plants and all other topics. तो मिक्सचर्स के अंदर जो हमने सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है दैट इज मिक्सचर्स. ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक. And in this topic, basically, I'll just give you a general idea that what are we going to study in this topic. In this topic, we will be basically studying the difference between, we already know in the previous lessons, we discuss about elements and compounds. All right. What are elements? Elements are pure substances which cannot be broken down into further simpler substances, right? And compounds are pure substances which are formed as a result of chemical reaction. So when the chemical reaction takes place, this is that in that scenario, the mixture or the product which we get, it's known as the compound. But now we are studying about mixtures. So what are mixtures? Basically, mixtures are when chemical reaction does not occur, and as a result we get something mixed with one another. जब आपने किसी दो चीज़ों को मिक्स कर दिया है बट उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है. अब बेसिकली केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? केमिकल रिएक्शन होता है व्हेन one substance, the atoms of both of the materials which are chemically reacting together, they rearrange themselves and they form a product which is new. ठीक है. कंपाउंड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनके एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ठीक है. उनकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल भी अपने कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो अपने एलिमेंट्स से मैच नहीं करती जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है. एक न्यू सब्सटेंस बनता है पहली चीज केमिकल रिएक्शन में, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट से मैच नहीं करती, ठीक है जी. बट मिक्सचर्स, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट सिनेरियो. लेट्स सी व्हाट मिक्सचर्स आर. So basically, in this lesson, you will be introduced to the topic of mixtures, and this is basically today's motive of the lesson. So, initial or the essential question which I asked you is what are mixtures? So, by the end of this lesson, you will be able to explain what a mixture is and identify whether a mixture is heterogeneous or homogeneous. हम इनकी जो दोनों टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशंस को भी स्टडी करेंगे. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं.
So in today's lesson, we will be talking about mixtures and you will explore 3D models to help you form a hypothesis about the definition of mixture. So hypothesis is basically an ideology, okay? And watch a video to learn more. We will be watching some videos and that would be all for today. Okay, so imagine that our class is holding a two ingredient taste competition, and the winner of the contest is the student who can come up with the most delicious mixture that includes only two ingredients. Okay? What two ingredients would you mix together and why? So you can mix any of the two ingredients together and make a mixture. So basically mixture or um, pure substance में क्या फर्क होता है? What do you think is the difference between a pure substance like salt and a mixture like salt water? So, what is the difference between both? You are supposed to write your answers over here. That what is a pure mixed substance, and in comparison to a pure substance, what is a mixture? अभी तक जो आपको इसके बारे में पता है, यहाँ आपने वो लिखना है. I am waiting for your answers. So basically, what do we know about it? Means, for example, what do I know about it? Pure substance includes an element. ओके, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर एलिमेंट्स आते हैं और प्योर सब्सटेंसेस कैन अंडरगो a chemical reaction what else जी हिशाम शहीर प्लीज write your answers. What do you think the difference is between a pure substance and a mixture? अच्छा, एक और चीज हो सकती है, प्योर सब्सटेंस कैन बी एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस जो हैं ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं. यस, प्योर सब्सटेंसेस इज मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट. It is made up of single element. It can be, it's possible that it is made up of single element, and it is also possible that it is made up of different elements combined together, जैसे कि एक कंपाउंड में होता है. ठीक है, सो प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स भी आते हैं, कंपाउंड्स भी आते हैं. अब एक मिक्सचर क्या होता है? बेसिकली एक मिक्सचर ये होता है कि अब आपके पास मिक्सचर्स की एग्जांपल्स क्या हैं? आपने सैंड ली, आपने वाटर में मिक्स कर दी. ठीक है, सैंड सैंड ही रहेगी, वाटर वाटर रहेगा. जब आप उन्हें सेपरेट करेंगे तो वो सेपरेट भी हो जाएंगे. ठीक है, तो जो मिक्सचर्स होते हैं बेसिकली ये सेपरेबल होते हैं. ठीक है, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड. ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड. बट जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये सेपरेट नहीं हो सकते. प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड. अब ये सेपरेट कैसे होंगे? बाय डिफरेंट फिजिकल बाय डिफरेंट physical means such as filtration. अब फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है कि आप फिल्टर पेपर रख देते हैं
और फिल्टर पेपर से आप उसको क्रॉस करवाते हैं, जिस भी मिक्सचर को आपने क्रॉस करवाना है, तो फिल्टर पेपर जो है वो उसके दो इंग्रेडिएंट्स अगर उसमें मिक्स हुए हैं तो उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को फिल्टर पेपर जो है वो सेपरेट कर देगा। वाटर सेपरेट हो जाएगा, सैंड सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है सॉल्ट वाटर की। सॉल्ट वाटर इज ऑल्सो मिक्सचर। अब मिक्सचर हमेशा वो होता है जिसके जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का एक मिक्सचर हो, मतलब उसको आपने आपस में डिसॉल्व कर दिया है या आपने उन्हें वैसे मिक्स कर दिया है। जैसे अब सॉल्ट, अगर आप सिर्फ सॉलिड टू सॉलिड, मिक्सचर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स हैं, जैसे कि अब आपने फॉर एग्जांपल सैंड लिया, सैंड में आपने रेत मिक्स कर दिया, सीमेंट मिक्स कर दी। ठीक है, तो वो अगर आपने इन दोनों चीजों को मर्ज कर दिया तो वो एक मिक्सचर बन गया। ये दो सॉलिड्स का मिक्सचर है। ठीक है, इस तरह से सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर भी होता है। जैसे आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जब शुगर आपने वाटर में डिसॉल्व की तो उससे क्या होता है कि वाटर जो है वो मीठा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि शुगर जो है वो कहीं गई नहीं है, वो डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई, शुगर शुगर ही रहती है, वाटर सेपरेट रहता है शुगर से, लेकिन वो इवनली उस पूरे मिक्सचर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दैट इज अ मिक्सचर। इस चीज को आप मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, नाउ एयर इज अ मिक्सचर। ठीक है, एयर एक मिक्सचर है, और जो वाटर हम पीते हैं वो डिफरेंट मिक्सचर्स हैं। मिनरल वाटर भी एक मिक्सचर है, उसमें वाटर भी होता है, वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, H2O कहते हैं वाटर को। हम प्योर वाटर नहीं पीते, हम जो वाटर पीते हैं मिनरल वाटर पीते हैं। मिनरल वाटर पिया जा सकता है, प्योर वाटर तो पिया ही नहीं जा सकता। वो जो मिनरल वाटर हम पीते हैं उसमें मुख्तलिफ मिनरल्स भी होते हैं। अगर आप पीछे से उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े ना, उसमें बहुत सारी एक लिस्ट ऑफ मिनरल्स होती हैं जो उस वाटर के अंदर होती हैं। वाटर भी होता है और मिनरल्स उसमें मिक्स हुए हुए होते हैं। सो इसी तरीके से एयर भी एक मिक्सचर है। डिड यू नो दैट एयर वी ब्रीथ इन इज अ मिक्सचर? व्हाई? बिकॉज एयर के अंदर आप देखें कितनी डिफरेंट टाइप्स की एयर्स हैं। एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर मैम में हीलियम। हीलियम हीलियम। है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। बहुत सारी गैसेस होती हैं जो मिक्स हुई हुई होती हैं एयर में। ठीक है, so as you explore the 3D model of the atmosphere on the next slide, think about what is air is made up of and why it is considered as a mixture. Okay, so it's just a small video and इसमें कोई साउंड नहीं है, तो आप इसको मेरी इस पे भी देख सकते हैं ना। यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, बेसिकली ये नीचे अर्थ है। ठीक है, नीचे अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर उसका सारा एटमॉस्फेयर है, हमारी अर्थ का। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर्स, सॉरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। ठीक है, दिस इज अर्थ एंड अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। अब ये इस एक स्पेसिफिक एरिया में डिफरेंट गैसेस हैं, इस एरिया में डिफरेंट गैसेस हैं, इस एरिया में डिफरेंट गैसेस हैं, इस एरिया में डिफरेंट गैसेस हैं। और अल्टीमेटली जब हमारा ये वाला जो सबसे ऊपर वाला एरिया पोर्शन है, यहाँ हमारी अर्थ की ओजोन लेयर होती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर भी बेसिकली गैसेस से बनी हुई है। वो कोई ऐसी लेयर नहीं है जो किसी सॉलिड से। हेलो।
Hello? 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 Assalamu alaikum. Am I audible, everyone? Boys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अहमद भी आ गया है, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं तो स्कूल आई हुई हूँ। ओ माय गॉड, आई एनवी यू। आप लोग घर बैठे हैं और मैं स्कूल बैठी हूँ। मैंने तो मुझे लगता था ये मीटअप भी जरा लेट हो गया। मैं सोया हुआ, मम्मा आई है और कहती मीटअप नहीं लेना, पढ़ना नहीं है। मैं फिर उठा हूँ, फिर अभी लिया, अभी भी सोई हुई शक्कर लिया। हाँ, नहीं, बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट। सुबह सुबह उठ के स्कूल आना बहुत मुश्किल लग रहा है काफी मैम, दिनों बाद। अब लाइट का बड़ा इशू है मैम। लाइट नहीं जा रही है, पता नहीं क्या हुआ है मैम। उस दिन पूरे पाकिस्तान की लाइट गई थी रात को 12 से 5 बजे तक। हाँ, लाइट गई थी वाकई। अभी भी बहुत तो इशू है मैम। उन्होंने क्लास बताया भी नहीं था भाई क्यों गई थी लाइट। मैम यकदम आ जा रही है, आ जा रही है, आ जा रही है ना। फोन चार्जिंग पे लगा सकता हूँ मैं मैम, साथ ही हाँ, ये तो इशू है काफी सारे लोगों को। बल्कि कल हम ये सोच रहे थे कि ये जो इन्होंने कल स्कूल ऑन कर लिया, ये हम जाएंगे कैसे। मैम इस तरह हुआ जो यूपीएस है ना, तो वो बोर्ड लगा था ना साथ उसके, उधर मैं फुटबॉल ले गया कमरे में फुटबॉल ढूंढने। वो कमरे में मैंने फुटबॉल मारा उसे, तो यूपीएस को ही खराब मैंने कर दिया। तुम्हारा ठीक तो मैं तुम्हारा खराब कर दिया। अच्छा बॉयज, इसको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, फिर हम इस सेशन को रैप अप कर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एयर विच वी मुझे भी लिंक भेज ब्रीथ दो। मेड अप ऑफ? What is the most common element in it and why is the air considered a mixture? जी। मैम मुझे भी लिंक भेज दो। हाँ जी। अच्छा, जब जो एयर इज मेड, I'm done. what is the air which we breathe made up of? So Shahid is saying that air is made up of different types of gases and the most common gas is oxygen. अच्छा, वैसे बेसिकली द मोस्ट कॉमन गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 70% होती है एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन इज ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, सॉरी, और ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है इन द एटमॉस्फेयर। Why is air considered as a mixture? Because it is made up of different types of gases. For example, oxygen, nitrogen, carbon. So these are different types of gases which are present in air. That's why it's known, considered as a mixture. Okay. ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे दफा जाते हैं। सो इज इट अ मिक्सचर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। सो इसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और मुख्तलिफ और गैसेस होती हैं एयर में। Did you guess correctly in the last activity? Yes, you did. So now let's watch a video that demonstrates one of the key characteristics of a mixture. So basically, what is this?
कोई बता सकता है ये क्या है? आई थिंक इट्स ब्लड। मैम केमिकल है शायद। मुझे तो ब्लड लग रहा है, ये ब्लड है। मैम ये ब्लड का सैंपल है कोई मैम? जी, ये ब्लड का सैंपल है। ये देखें ना, जब आप ब्लड, असल में ब्लड में भी हमारे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं ना, तो जब आप ब्लड को ऐसे किसी ट्यूब के अंदर रख के थोड़ी सी देर छोड़ दें, मतलब जब भी आप किसी मिक्सचर को बगैर मिक्स किए एक जगह पे छोड़ देते हैं ना और वो पड़ा रहता है, तो उसमें जो हैवी मटेरियल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते मैम हैं। हाँ मैम जी। हमेशा मैम मैम हमेशा थिक चीजें कभी भी मैम किसी चीज के साथ नहीं मिक्स हो सकती ना। नहीं, मिक्स तो हो जाती हैं, लेकिन वो फिर सेपरेट भी हो जाती हैं। मिक्स हो जाती हैं लेकिन सेपरेट हो जाती हैं फिर। जैसे अब आप वो फिर आप जैसे बात कर रहे हो ना कि अगर हम ऑयल को जैसे वाटर में मिक्स करें तो वो मिक्स नहीं होगा। ऑयल की सेपरेट लेयर बनेगी और वाटर की सेपरेट लेयर मैम बनेगी, वो मैम एक वो अलग पता नहीं चीज क्या है। चीज थी मैम, उसमें ऑयल और मैम पता नहीं क्यों कौन सा ऑयल था मैम और क्या चीज मिक्स की थी मैम, वो सब मैंने लाई बोतल मैम पहले इस तरह हो गया लेकिन मैम फिर वो ऊपर आ गया फिर ये नीचे चली गई। हाँ, दैट इज बिकॉज क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर से हल्का होता है, उसका वेट ऑयल का जो है वो वाटर से लाइट वेट होता है, इसलिए वो ऊपर रहता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप स्टोन्स को पानी में डालेंगे तो वो उसके नीचे चल जाएंगे क्योंकि स्टोन जो है वो हैवी है। ठीक है, और वाटर जो है मैम और पानी वो ऊपर आ गया। स्टोन से कम हल्का है। ठीक है, उसका वेट कम है, वो वेट की वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस ब्लड वाले सैंपल में भी इसी वजह से ये नीचे सेल्स बैठ गए हैं। ये ऊपर आपके पास जो है ना, ये ब्लड में जो वाटर है ये वो है, और नीचे जो है आपके पास सारे रेड और वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो ब्लड जो है ये भी, इसमें भी जो सेल्स होते हैं क्योंकि वो डिस्पर्स हुए हुए होते हैं, पहले मिक्स हुए हुए होते हैं, तो वो मूव कर रहे होते हैं सेल्स ब्लड में। लेकिन जब वो आप एक बॉटल में डाल के रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स हैं ये सारे बैठ जाते हैं, हल्के वाले ऊपर आ जाते हैं, वाटर ऊपर चला जाता है, सेल्स जो है वो नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से होता है। So make a guess about the key characteristics that can help you determine if something is a mixture. आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एक मिक्सचर है? मैम मैम बिकॉज ऑफ द मैम जो लाइट वेट होगा वो ऊपर चला जाएगा मैम, और जो मैम जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे गिर जाएगी हर चीज। हाँ जी, बिल्कुल। मिक्सचर सेपरेट सेपरेट हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में भी तो हमने यही देखा है ना कि इस वीडियो में अब ये ब्लड एक मिक्सचर है तो ये सेपरेबल है, सेपरेट हो जाता है, ये थोड़ी टाइम के बाद ये सेपरेट हो जाएगा। लेकिन जब जब भी जो दो चीजें सेपरेट हो जाएं तो वो मिक्सचर होती हैं, वो मिक्सचर कंसिडर की जाती हैं। और अगर वो सेपरेटेबल नहीं है तो वो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो सेपरेट नहीं हो सकते। So this will be the answer to it. That key characteristic that can help us determine that if something is a mixture is this, that mixtures can be separated, but compounds and elements they cannot be separated from one another. फिजिकल मीन्स से, फिजिकली मतलब फिजिकली अगर आपने कोई फिल्ट्रेशन किया या कोई और सेटल नहीं हो रहे। ठीक है, इसी तरह अगर आप सैंड और वाटर को मिक्स करें, थोड़ी देर आप उसको भी रखेंगे तो सैंड नीचे बैठ जाएगी सारी और वाटर ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से ये सेपरेट हो जाती हैं, सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं जब एक मिक्सचर बनता है तो। ओके बॉयज, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन इनमें? नो मैम। शहीद हिशाम, आप एक दफा समराइज कर दें
कि हमने क्या पढ़ा है आज। Ma'am, ma'am, mixtures can be separated. And what are mixtures? Ma'am, and pure substance cannot be separated. Well, it is not a pure substance. Mixtures are not pure substances. They are just simple substances which can be separated by physical means. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ठीक है बॉयज, फिर इंशाल्लाह ताला टुमारो वी विल मीट अगेन। एंड आज आप सबको बता दीजिएगा कि हमने पढ़ा था और क्या पढ़ा था, ये भी बता दीजिएगा, और उन्हें ये भी बता दीजिएगा कि कल की क्लास में वो ऑनलाइन आए, बिकॉज वी आर स्टडिंग, वी विल बी स्टडिंग। ये सेकंड टर्म हमारी अब स्टार्ट हो गई है। Okay, ma'am.